जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में गाला पेपर 2021 जो नवनीत का गाला पेपर्स निकला हुआ है उसका हम सिंपल पेपर 2 आज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 is one of the zeros of the polynomial p of x is equal to x square minus 8x is plus 15। हमें बताना कि क्या ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो जीरोज अगर आपको 3 दिया गया है तो ये 3 इस कंडीशन को यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसे सेटिस्फाई करेगा या इसका आंसर क्या लाएगा, 0। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं और फाइंड करते हैं कि क्या ये 3 आएगा 0। तो 3 और होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15 और इसे सॉल्व करने पर ये आपको फाइंड हो गया 9 माइनस 24 प्लस 15। तो 24 माइनस 24 is equal to 0। That means this statement is true, right। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है इक्वेशन x square plus 5x plus 8 is equal to 0 has no real roots। नो रियल रूट्स फाइंड करने के लिए आपके पास में एक कंडीशन है कि d इज लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स, राइट। सो फाइंड करो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का कि d कितना आता है। तो a इज 1, b इज 5 एंड c इज 8। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम अगर वैल्यू रखते हैं तो b स्क्वायर दैट मीन्स 25 हो गया, सॉरी। एंड सेकेंड a एंड c अगर हम फाइंड करते हैं 4 इंटू 1 इंटू 8, तो 25 माइनस 4 इंटू 8 is 32। so this is minus 7 is less than 0। so this condition is also true। so second is also true, right। so now थर्ड क्वेश्चन फाइंड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज the decimal expansion of 132 upon 250 is नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के लिए आपके पास में फॉर्मूला है कि अगर आप क्यू फाइंड करते हो, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है 123 बाई 250। तो फर्स्ट q if q is 2 raised to m and 5 raised to n form, then this is terminating and otherwise this is non terminating। so find the prime factorization of 250। if we find the prime factorization of 250, then 123 upon 2 into 5 raised to 3। so this is in the form of 2 raised to m and 5 raised to n। so this statement is false because this is non-terminating is given। so this condition is false। so third is false। now question number 4, the graph of 5y plus 7 is equal to 0 is a line parallel to y axis।
Now fourth is y 5y plus 7 is equal to 0. This is the y-axis and this is the x-axis. Now find the value of y is equal to minus 7 by 5. If there is y is minus 7 by 5 is here. If x is 0 then is also this point, and if x is 1 this also this point, if x is 2 this also is this. Now for all value of x is y is always minus 7 by 5. So this is the parallel to x axis, not a y axis, right? So this statement is false. So this is also false. Okay. Now next question number 5. This is the given following statement is true, selecting the proper option from this given in the bracket. ब्रैकेट में हमें क्वेश्चन गिवन है और उसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा. Now question number 5. Question 5 is the area of the triangle formed the x-axis and y-axis and the representing x plus y is equal to 8. That means this is y-axis, this is x-axis, and this line is presenting x plus y is equal to 8. Now this point is 0 y and this point is x 0. Now if we find the value of this point is on the line x plus y is equal to 8, ये जो point है x और y, the 0 y this is the on the line x plus y is equal to 8. So this condition is follow. That means this uh, equation is satisfied. So if we will find the y is equal to 8 because x is 0 then y is equal to 8. So this point is distance between origin the 8 unit. Same as if we will find the value of x according to x axis, then x is x and y is 0. That means this distance is also 8 centimeters. So x is equal to 8. Now find the area of this triangle. So area of this triangle is half base into height. So 2 4 and 32 SQ units. So this is the 34 is a correct option. Now next question number 6. The decimal expansion of this rational number is decimal place is 345. Okay. So now 6 is the decimal expansion 31013 upon 61250. Now we will first we will find the prime factorization of this point, right? So 61250 is divisible by 2. So 3 and 6 and 2 and 5 and sorry, this is not a 1. This 62550. Okay. So divisible by 2, that is 2 3 is 6, 2 and 2 and 2 2 is 4 and 2 5 is 10. Now this is divisible by 5 6 2 and 5, and this is also this is 5 divisible by 125 and it's also divisible by 525 and divisible by 5 is 5. So 5 is 1. Now if we will find the denominator is 2 into 5 raised to
5. Here 5, this is power 1, 2 raised to 1, and 5 of power 5. So the highest power is 5. That means the decimal place digit is 5. तो 5 के बाद में ही इस जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद में आपके 5 डिजिट्स होंगे. तो ऑप्शन लास्ट इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज 5. क्लियर. Now next, question number 7. The distance of the point -5 and 12 from the origin is this unit, this unit. So here is first point is -5 and 12, and second point is 0 and 0. Now we have the formula of distance. So if this point is A, this point is B, then AB is a square root of x1 minus 5 is minus 0 is whole square plus y1 minus y2 of whole square. So 12 minus 0 is whole square. So this is 25 plus 144. So this is 169. So 13 units is our answer. 13 units, the third option. Clear. Now next is the roots of the quadratic equation 4x square minus 49 are this. So now we will find 4x square minus 49 is equal to 0. राइट. यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो दिस इज 2x minus 7 and 2x plus 7 is equal to 0. So first is 7 by 2, first root, and second root is minus 7 by 2. So this is our correct option. 7 by 2 and minus 7 by 2. So last option is correct. Clear. Now question number 9. The which terms of the AP is 2, 21, 42, 63 is less is 210. Right. Find the number of terms. हमें यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म. तो an is 210, and if AP is 21, 42, 63, then A is 21 and T is also 21. Now find an is equal to A plus n minus 1 into D. So an is 210, A is 21 plus n minus 1, 21. So 21 is there. So minus 21 is equal to n minus 1, 21. So this is 9, and this is 10, 8, 1, and divide by 21 is equal to n minus 1. So 9 ja, so n minus 1 is equal to 9. So n is equal to 9 plus 1 is 10. Is correct option. Clear.
Now next question number 10. In triangle this 90 degree and PQ and QR is ratio 1:1, and so PQ ratio PR is what? Right? So question number 10 is in triangle PQR. PQR. This is 90 degree. This is 1K. Is also 1K. So by Pythagoras theorem, this is 2K. Now find the ratio of PQ and PR. So PQ is 1K and PR is root 2K. So K is can cancel out. So 1 ratio root 2 is correct answer. So this option 1 ratio. So this is correct. Clear? Now next question number 11. Question number 11 is state the condition. State the condition for the quadratic equations ax square plus bx plus c is equal to 0 to have opposite roots. Opposite roots कब होगा इसका? जैसे आप यहाँ पे दिया गया हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तब आप यहाँ पे लिखते हो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगर आपको दिया गया हो जैसे अभी आपने एक सम सॉल्व किया था 4x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0, तब आपने लिखा था कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये जो आपका x टर्म है वो 0 है और x टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है b। दैट मीन्स b अगर 0 होगा तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। सो b इज इक्वल टू 0 इज करेक्ट आंसर। तो दिस क्वेश्चन 11 इज b इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is the common difference of AP is 5/2. What would be the difference of the 15th terms and 5th term? Common difference is 5/2, right? That means D is equal to 5 by, and what is the difference of the 15th terms, and that means A15 minus A5 is what? So A15 is A plus 14D minus A plus 4D. Now A plus 14D minus A minus 4D. So A is cancel out. So 14 minus 4 is 10D. That means D is 5/2. So 10 into 5/2. So 2 5s are this. So 25 is correct answer. Clear? Now next question number 13. Question number 13 is in PQR XYZ, PQ QR PQ upon XY, QR is YZ and PR is Z. So what is the area of this? तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा भी कोई सम दिया गया है तो आपका जितना यहाँ पे रेशियो होता है उनका भी रेशियो सेम ही होगा। क्लियर? तो 13 इज बिकॉज PQR अपॉन XYZ is equal to 2/5 is करेक्ट ऑप्शन। इतना ही रहने वाला है। ओके, यहाँ पे
दैट मीन्स सॉरी, यहाँ पे आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला रीड किया हुआ था कि एरिया ऑफ, 13 में हमारा एरिया ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स वाई ऑफ होल स्क्वायर, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करो आप, तो आपका सेम होता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कितना, 2/5। तो 2/5 अगर आप करते हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 4/25 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्स वाई सॉरी साइन 1/2, then find the cot of A. So first of find sin A. Sin A is equal to 1/2। साइन का कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए कि जिससे 1/2 आए? तो साइन का वैल्यू अगर हम 30 रख देते हैं, साइन ए इज इक्वल टू साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया ए इज इक्वल टू 30, और यहाँ से अब हम ये ए वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कोट ए इज इक्वल टू कोट 30। कोट 30 का वैल्यू क्या होता है? कोट 30 का वैल्यू आपको पता है, तो ये आपका आंसर होगा। चलो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, question number 15 is, if the radius of two circle with the center O and O dash 7 centimeter and 10 centimeter, the distance between their the center is 12 centimeter, how many points do the circle intersect? How many points do the circle intersect? अगर यहाँ पे हमें गिवन है ये दोनों पॉइंट्स, राइट, यहाँ पे हमें टू सर्कल्स गिवन है। फर्स्ट सर्कल इज दिस, राइट, एंड नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ओके, और दूसरा एक सर्कल आपको गिवन है यहाँ पे, का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, राइट। मैं यहाँ पे अभी साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे अगर ये 7 है और ये यहाँ से 10 है, और बोला गया है कि ये दोनों इस तरह से सेट किए गए हैं कि इनके सेंटर का जो डिफरेंट है डिस्टेंस, सॉरी जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 12 है। दैट मीन्स ये इस साइड में यहाँ पे कहीं पे होगा, तो अगर इसे हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पर, राइट, अगर इसे हम 12 सेंटीमीटर पर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, ये आपका सपोज करो कि ये 10 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो 10 सेंटीमीटर ये टोटल 17 हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और फिर इसे हम ले जाएंगे थोड़ा यहाँ पे 3, जिससे आपका वहाँ पे 5 सेंटीमीटर बचेगा, राइट। ये आपका जो है ये आपका सेंटर था यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, राइट। ये हमने शिफ्ट किया, देखो यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, 10 है, तो इधर 7 हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका 7 है, दैट मीन्स इसी के अंदर में ये आ गया। तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, ए
and P. That means 2 point. Clear? Now next question is question number 16. Question number, what the radius of the circle inscribed in a triangle with sides of length 12 centimeter, 13 5 centimeter and 17 centimeter. यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर कोई ट्रायंगल्स के अंदर में एक सर्कल दिया गया है, राइट। ट्रायंगल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से सर्कल लेते हैं। ये सर्कल जो है इसके सभी पॉइंट्स को टच कर रहा है। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से हमें दिया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सपोज कर लेते ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पे हम पहले फाइंड कर लेते हैं ये जो 3 नंबर्स हमें गिवन है, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं या नहीं करते, या पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि तो ही आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड कर लेते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। तो 12 square is 144 plus 35 is 1225. So this is 9 and 6 and 3 and 1, and this is the square of 37. So this is the right angle triangle. और राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको गिवन है तो आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो रेडियस फाइंड करने के लिए। रेडियस इज R is equal to AB plus BC minus AC upon 2. So 12 plus 35 minus 37 divided by 2. So R is equal to, this is 10, right? 10 by 2. So R is 5 centimeter. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप फाइंड करते हो तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फाइंड करना है फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीडियन कैन बी फाउंड आउट ऑफ द ड्राइंग। इट्स क्या ड्रॉ किया जाए कि जिससे हमें मीडियन फाइंड हो जाए। तो अगर हम वो गिव्स ड्रॉ करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा। तो दैट इज 17 का जो आपका आंसर होगा वो होगा वो गिव्स ऑप्शन डी। नाउ 18 number is, it is not possible the probability of
इज, इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड नहीं, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू 1, बट 1 से अगर ज़्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब भी आपका नोमिनेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो तो आप उसे वहाँ से ही पता कर सकते हो कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप इसे फाइंड करना चाहते हो तो आप फाइंड कर सकते हो रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी में आप क्या कर दो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो जो नीचे नंबर्स दिया गया उसके अपोजिट्स से आप ऐसे कह सकते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर दो। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये रूट्स पूरे पर आ गया। तो ये आपका हो गया 1 प्लस साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, ये रूट हो गया, एंड माइनस cos square theta, 1 minus sin square is cos square. So this is 1 plus sin theta upon cos theta. रूट हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by cos is sec theta and sin by cos is tan theta. So option A is correct. Sec theta plus sin theta is, sorry, sec theta plus tan theta is correct option. Okay. Now next question number 20. Question number 20 is the given figure the area of segment PAQ square centimeter, PAQ segment, that means आपको फाइंड करना है ये पोर्शन, सिर्फ इतना। ये 90 डिग्री गिवन है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपका रेडियस हो गया R इज इक्वल टू A एंड थीटा इज इक्वल टू 90। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 ए स्क्वायर, राइट, क्योंकि बेस और हाइट दोनों यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हो दिस इज 4, राइट। अब यहाँ पे हम इसमें से 4 फाइंड करने के लिए यहाँ पे 2 से हम मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ से आपका फाइंड हो गया ए स्क्वायर बाई 4 इज कॉमन एंड पाई माइनस 2 इज आंसर। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस 2, दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Okay, now next is question number 21. Question number 21 is 3 metallic sphere with radius 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter recast into a single sphere, then what is the radius of new sphere? यहाँ पे जब भी आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया गया तो दैट मीन्स यहाँ पे तीनों स्पेयर को मेल्टिंग करके उसे एक स्पेयर बनाया जा रहा है। दैट मीन्स तीनों का वॉल्यूम किसके इक्वल में होगा, वो लार्जर स्पेयर के इक्वल में होगा।
तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। तो 4 पाई is common, so R3 cube is equal to R1 is 3, that is 27, R2 is 4, that is 64, and 5 is 125. So R cube is equal to, and 7, 11 and 5 and 9 and 16 and 2, 1, 8 and 9, 9 and 2, 11 and 1, 1 and 2. So R is equal to, this is the 6 cm. So option C is correct option. Now next is the volume of the largest right circular cone that can be curved out of the solid hemisphere of the 1 minute. This is पहले यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 22. The volume of largest right circular cone that can be curved out of the solid hemisphere of the radius r is given by. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका आएगा, दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. दिस इज, यहाँ पे आपका जो लार्जेस्ट सर्कुलर कोन है वो आपका रेडियस हो जाएगा, तो फिर ये बनेगा आपका 1/3 पाई आर क्यूब. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23. 23 is, this is the 20th terms of AP of this is what? So first we will find the A. A20. A20 is A plus 19 D. So A is 50 plus 19, D is minus 3, 47 minus 50. So 50 plus, sorry, this is minus 57. So this is minus 7. So option A is correct. Now question number 24 of this section A. So question is a given frequency distribution m is 24 and x bar is this, so the z. हमारे पास में इन तीनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला है कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे सभी का, तो 3 and this is 24 minus 2, 22. So this is, and 3 4 ja 12, 72 minus 44. So 12 minus 4 is 8 and 6 minus this is, so 28 is correct option. तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन 1 सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद.